Okay, so let's start today's session. Mm, Last time we have seen how to evaluate the double integration. Basically, if integration limits are function of x, then you will evaluate with respect to y first. And if integration limits are in terms of y, that means function of y, then you will evaluate with respect to x first. So depending on the integration limits, you will decide the order of the integration. So when you will evaluate with respect to y, that is dy, that means you are integrating vertically first. वर्टिकल स्ट्रिप्स पे आप इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हॉरिजॉन्टली वो जो वर्टिकल स्ट्रिप्स होता है वो ऐड कर देंगे. So that is one way to determine the value of integration. The other way to determine value of integration is you can first evaluate with respect to dy. So when you evaluate, when you evaluate with respect to dx, that means you are integrating horizontally first. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स पे आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे और बाद में वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है वो ऐड करते जाओगे फ्रॉम गिवन लिमिट्स. Okay. So that is about the integrating vertically and horizontally. So we will see today how to change the order of integration. But before that, let me just okay. So let us work on it. So when I change the order of integration, what do I mean? Sometimes the integration will become simple if we evaluate using changing order of integration. In some of the cases, it is impossible to evaluate integral using given order. So जो भी order आपको question में दिया जाएगा उससे वो integration evaluate होगा ही नहीं. So in this case, we will change the order of integration. What do you mean by changing the order of integration? So as I explained, if this is your region, either you can have first calculated vertical strips. So when you evaluate it in the vertical strips, the limits are given as. So जब ऐसा evaluation होता है तो कैसा integration होगा? Suppose this is a function, say c of x, and this is a function d of x. Okay, so every strip पे क्या चेंज हो रहा है आपका? x तो कांस्टेंट रह रहा है. तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, so this is your x axis and this is your y axis. So आपका हर एक स्ट्रिप पे क्या हो रहा है? चेंज y एक्सिस के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. सो ये इंटीग्रेशन में ऐसे जा रहा हूँ फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम cx टू dx. और जब हम ये इवेल्युएट करेंगे, सिंस फंक्शन x का है, वी विल इवेल्युएट विथ रिस्पेक्ट टू y. ये पहले कैलकुलेट होगा और बाद में आपका x कहाँ से चेंज हो रहा है? फ्रॉम a टू से b. ये अच्छे से काम नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई बात नहीं. सो व्हाट इज मीनिंग टू से, this is one way of evaluating integration. The region is drawn like this. First we will change y is equal to c of x. This is the equation of like this, y is equal to c of x to y is equal to d of x, and then we will integrating with respect to a to b. So यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे देखेंगे? y is equal to x to y is equal to root of x. तो ये जो इंटीग्रेशन है, just let me mute this participant.
So please check yourself, otherwise it will disturb whole the class. So integration from a to b, that means first we will evaluate y is equal to cx to y is equal to dx. यहाँ पे क्या है, y is equal to x to y is equal to root x, and then we will evaluate a का value 0 है, b का value 1 है. So this is one type of integration. The other type of integration will be like this. If you have the integration, let me draw the axis first. So this is your y-axis, this is your x-axis, and you have given the integration region. This is your integration region. Okay. Then here your value is changing from cy to dy. What does it means? जैसे हमने पहले देखा था कि हम लोग पहले वर्टिकल स्ट्रिप्स पे इवेल्युएट करेंगे, तो अभी क्या है, cy to dy मीन्स अगर आपने कोई भी एक पॉइंट लिया तो यहां से इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है dy तक, फ्रॉम cy to dy, from cy to dy. Okay, so that means you are getting this horizontal strips everywhere, and then you will add this horizontal strips from, suppose यहाँ पे फंक्शन है c y is equal to c to y is equal to d. So आपका इंटीग्रेशन ऐसे बन जाएगा y is equal to c to y is equal to d, and limits from cy, x is equal to c times y, and x is equal to d of y. Okay, so function का जो limits है in terms of y है, functions in terms of y, therefore you will evaluate with respect to x first, and then you will evaluate with respect to y. Okay, understood the process? There is one of the two forms where you can evaluate the integration. Either आप vertical strips पे evaluate करोगे पहले, and then you will add the vertical strips horizontally, or you will evaluate on the horizontal strips like this. This is horizontal strips, horizontal हम lines draw कर रहे हैं, and then you will evaluate with respect to this horizontal lines you will add vertically from C to D. Okay, so that you will cover whole of this region. So basically what you want to cover, you want to cover whole of the region either by horizontal strips or by vertical strips depending on the order of integration. Okay, so what are the steps to change the order of integration? मतलब अगर horizontal है उसका vertical बनाना है, vertical है उसका horizontal बनाना है, चेंज करना है हमको ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इज ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. आपको एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा. सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज इफ नेसेसरी, अदरवाइज अगर नेसेसरी नहीं है तो नहीं करेंगे ये. थर्ड स्टेप इज व्हाट? चेक वेदर इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस. जो मैंने अभी समझा कि अगर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ dx है फर्स्ट, तो dx फर्स्ट है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होंगे, अगर dy फर्स्ट है तो वर्टिकल स्ट्रिप्स होंगे. तो इंटीग्रल वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पे इवैल्यूएट कर रहे हैं या वर्टिकल लाइंस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं वो देखेंगे, एंड देन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस आर 4 स्टेप्स टू परफॉर्म चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो लेट अस, ये सब अभी एब्स्ट्रैक्ट बातें हो गई, अभी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं. ओके, सो व्हाट इज दिस? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम x to root x. द फंक्शन fxy क्या दिया है? x² + y² dy dx. dy dx मतलब क्या है? Since function in terms of x, we will first evaluate with respect to y and then with respect to x. So अपने को जब order change करने बोलते हैं तो dy dx को आपको क्या change करना है? You want dy dx to be equal to dx dy. मतलब आपको change करके dy dx को क्या बनाना है? dx dy. dx dy का मतलब क्या है? पहले dx पे इंटीग्रेट करेंगे, बाद में dy पे इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ का मतलब क्या है? dy dx, पहले dy पे इंटीग्रेट करेंगे, बाद में dx पे इंटीग्रेट करेंगे. dy मतलब वर्टिकल स्ट्रिप्स, dx मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स. ओके,
आपको पता है एंगल कैसे होते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, इसीलिए वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप्स पे आपको इवेल्युएट करना है। सो पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई करेंगे। लिमिट्स मैंने जैसे बोला y इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, एंड देन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। सो दिस आर द लिमिट्स है। तो अब पहले ड्रॉ करेंगे एज इट इज। सो लेट अस ड्रॉ दिस फंक्शन। ओके, नाउ कंसिडर दिस ग्राफ। फर्स्ट वाला जब ग्राफ है यही वाला ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज गिवन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स कैसे प्लॉट करोगे, you will plot 0, 0, you will plot 1, 1 and join the line in the straight line form. Y is equal to x is the equation of straight line. Okay, so equation of straight line आपको पता है कैसे प्लॉट करना है। कोई भी दो पॉइंट्स लेके आप प्लॉट कर सकते हो। so you will get this equation of straight line y is equal to x. okay, now next is, so ये वाला लाइन आपका आ गया, दिस इज योर लाइन, और उसके ऊपर इक्वेशन लिख दिया। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, y इज इक्वल टू रूट एक्स। y इज इक्वल टू रूट एक्स मतलब क्या है, इट इज सेम एज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू y स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन है। सो पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, आप कोई भी पॉइंट लो, x इज इक्वल टू से y स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 1 लिया तो x स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर इज 1, सो x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सपोज मैंने y इज इक्वल टू 2 लिया तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू y स्क्वायर 4, 2। ऐसे आप कोई भी पॉइंट्स ले लो, y इज इक्वल टू हाफ लिया, व्हाट इज द इक्वेशन, हाफ स्क्वायर इज 1/4 हाफ स्क्वायर। सो ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 1, 1 ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, 2, 4 2 यहाँ पे कहीं तो होगा, और यहाँ पे सॉरी 2, 4 प्लॉट नहीं कर सकते, x पे 2 पॉइंट्स लिया तो y पे कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। मतलब x4 मतलब यहाँ पे कहीं तो होगा, यहाँ पे 2 आएगा। सो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मैंने एक्सटेंड किया 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे कहीं तो चला जाएगा एंड आई कैन प्लॉट, बट वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। सो आई विल जस्ट इरेज दिस। यू कैन प्लॉट दिस पॉइंट 1/2 एंड यहाँ पे 1/4, y एक्सिस पे 1/4। सो you will plot these points and you will get this parabolic equation of y is equal to root x. So ये दो इक्वेशन हमने ड्रॉ किए, y is equal to x and y is equal to root x. ओके, अभी अपने को क्या करना है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। यहाँ पे y का लिमिट है y एक्सिस के डायरेक्शन में, ये जो लाइन्स है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y is equal to x to y is equal to root x। ऐसे हर एक लाइन पे हमने इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, और ये लाइंस कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट when x coordinate is 1. Understood? This is how the equations are plotted. So we will get first y is equal to x, limits कहाँ से change हो रहा है, y is equal to x है, y is equal to root x, and then this vertical lines are added from x is equal to 0 to x is equal to 1. ये changing the order में आपको ये जो equation plot करना है और sketch बनाना है is very very important. First you will do this, जो भी गिवन ऑर्डर है उसका स्केच प्लॉट करो। ओके, आफ्टर प्लॉटिंग द स्केच सेम डायग्राम यहाँ पे रिपीट होगा, बट लिमिट्स कैसे चेंज होंगे, आपको अभी क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चाहिए। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में इंटीग्रेशन ड्रॉ करूंगा, सो यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वर्टिकल लाइन्स है, सो वर्टिकल लाइन्स पे पहले इंटीग्रेशन इवेल्युएट होगा, देन वर्टिकल लाइन्स फ्रॉम 0 to 1, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 1 पे ऐड होंगे। अभी अपने को क्या करना है, सेम रीजन को
आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ। तो हॉरिजॉन्टल लिमिट एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में। वाई एक्सिस का कौन से डायरेक्शन में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में। सो एक्स एक्सिस का इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो लोअर वैल्यू क्या होगा, लोअर वैल्यू ये जो ग्राफ है ये ग्राफ डिसाइड करेगा। अपर वैल्यू एक्स एक्सिस का कौन सा ग्राफ डिसाइड करेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो डिसाइड करेगा। सो व्हेन आई डू, आई विल चेंज माय एक्स लिमिट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट पे लिमिट्स क्या है, वाई स्क्वायर वैल्यू है, और ये पॉइंट पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई वैल्यू है। सो लिमिट कैन चेंज। इसमें कैसे था, इसमें द लिमिट्स आर फ्रॉम, in this particular case limits are from y changes from x to root x, and then x changes from 0 to 1। इस पॉइंट में क्या होगा देखते हैं। सिंस ये इस डायरेक्शन में बढ़ता है, सो लोअर लिमिट विल बी दिस y is equal to x and upper limit will be this y is equal to root x। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट ये वाला वैल्यू होगा, क्योंकि एक्स का डायरेक्शन का कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड फाइनली आपको हॉरिजॉन्टल लिमिट कहां से कहां ऐड करना है, 0 to 1। सो दिस इज कन्वर्टिंग ऑर्डर फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन टू दिस इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन का टर्म क्या है, पहले dy देन dx। इसका टर्म्स क्या होगा, पहले dx एंड देन dy। So changing the order of integration from dy dx to dx dy. Okay. So let us see further. Change करो the order of integration, जैसे मैंने बोला x is changing from y square to y, and then y is changing from 0 to 1. So we have converted this order into another order. Now evaluate the integration. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन पता है पहले आपको, सिंस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y यू विल इवैल्यूएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जब x के साथ इवैल्यूएट करोगे तो क्या होगा, यू विल टेक y कांस्टेंट, y का जो भी टर्म रहेगा उसको कांस्टेंट लेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, x raised to x रेज टू 3 अपॉन 3/3। ओके, सो दिस इज करेक्ट। अभी आप इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो ये क्या होगा, सिंस आपको वाई स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, सो वाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, यू कैन टेक आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, यू विल जस्ट गेट वाई स्क्वायर इंटू dx। सो वाई स्क्वायर इंटू dx मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x, so it is y square into x। so यहाँ पे क्या आया, x क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर x। so x क्यूब अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर x। लिमिट्स आर फ्रॉम, लोअर लिमिट इज y स्क्वायर, अपर लिमिट इज y, और ये लिमिट किसमें सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल सब्सटीट्यूट इन टर्म्स ऑफ x क्यूब, क्योंकि आपका लिमिट का टर्म क्या था, dx था। ओके, सो ये जो लिमिट है आपको किसमें सब्सटीट्यूट करना है, these limits are substituted in the values of x। so substitute करो limits, if you substitute what do you get, पहले टर्म में y का लिमिट सब्सटीट्यूट, ये वाला लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, so x क्यूब अपॉन 3 क्या बन जाएगा, y क्यूब अपॉन 3, x के जगह पे y रखा, और यहाँ पे y रखा तो क्या होगा, यहाँ जहाँ पे x है, y स्क्वायर इंटू वाई विल बी y क्यूब। so this is your first limit, ये वाला लिमिट सब्सटीट्यूट किया। अभी नेक्स्ट कौन सा करना है, वाई स्क्वायर का लिमिट सब्सटीट्यूट करना है। वाई स्क्वायर का लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, सो वाई स्क्वायर रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब है, सॉरी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एक्स है, सो वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इंटू 3 क्या होगा, वाई रेज टू 6 होगा, y रेज टू 6 अपॉन 3 होगा, और y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विल बी y रेज टू 4।
अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ पे वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब है, सो 1/3 प्लस 1 विल बी आउटसाइड इंटू वाई स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब। ओके, 1/3 प्लस 1 क्या होगा, 4/3। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, 4/3 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है y6/3 सेकेंड टर्म, और यहाँ पे माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस y⁴। सो ये आपका क्या हो गया, you will get this particular thing after simplification of this subtraction. After that you can take out this 4/3. What is integration of y cube? Y cube का integration क्या होगा, y4 by so y4/4. So ये 4 will get cancelled, you will get y4/3 of the first term. अभी सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकेंड टर्म के साथ कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है, 1/3 माइनस 1/3 विल बी टेकन आउटसाइड। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y⁶? y⁻7/7 y⁻7/7 you have to take the order y⁻n+1 upon n+1। जब भी plus n नॉट इक्वल टू 1 है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। n इज इक्वल टू -1 होगा तो क्या करेंगे, n इज नॉट इक्वल टू -1, ये ऐड करो, ठीक है। अभी y4 का क्या होगा, y5/5। सो वही लिख दिया। आपका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 1/3 इंटू 1/7 1/21 हो जाएगा, y⁴/3 माइनस y7/21 माइनस y⁵/5। सो ये आपका हो गया इवैल्यूएशन। अभी इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है तो पहले 1 डालो, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे 1 डालेंगे तो -1/21 माइनस 1/5, और 0 डालेंगे तो पहला टर्म भी 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल इट विल बी 0। लोअर लिमिट का इसमें 0 बनता है। सो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 माइनस 1/21 माइनस 1/5 यू विल गेट 3/25। हाउ टू डू दिस, पहले 1/3 माइनस 1/21 करेंगे। ओके, सो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 21 51 63। तो इट इज 18/63। इसको सिंप्लीफाई करो, 2/7, 9 2 जा 18, 9 7 जा 64। अभी इसमें से 1/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा, 2/7 जो आपका सिंप्लीफिकेशन है माइनस 1/5। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 7 अपॉन 35। 30 So 10 minus 7 is 3 upon 35. That is your answer over here. So you have to be patient in this particular calculation. So आपको मार्क्स ऐसे होंगे, जो आप रीजन ड्रॉ करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन में आपको रीजन के 2 मार्क्स मिलेंगे और इसके 3 मार्क्स मिलेंगे। Okay, so this is how the marks will be divided in this particular integration. Let us take more and more example, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपके हर एक इसमें आपको जो कंस्ट्रेंट दिए जाते हैं, फंक्शंस दिए जाते हैं, वो अलग अलग है, और आपको सभी फंक्शंस के ग्राफ एक बार रिवाइज करने चाहिए जो भी आप 12th में पढ़े हो। ओके, सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। Evaluate this particular integration. Change the order of integration and evaluate. Integration from 0 to 1, integration from 0 to y, y times, तो पहले x के टर्म्स में लिमिट्स है, अभी y के टर्म में लिमिट्स है। ओके, तो आप बताओ मुझे कैसा रीजन आएगा इसका। Let us draw rough, then we will draw the fair diagram. What is the first thing you will do is evaluate this term, x is equal to 0 and x is equal to y. ये दो लिमिट्स दिए, x is equal to 0 is the equation of
x is equal to 0 is the equation of y axis. Okay, so x changes from 0 to x is equal to y. X is equal to y is this line. Always remember x is equal to y is a line at 45 degree. क्योंकि इस पे पॉइंट्स एकदम सिंपल है, 0 0 0.5 0.5 1,1 2,2 1.5 1.5, ये सब पॉइंट्स प्लॉट करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा. तो इस दिस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y. ओके, अभी आपका लिमिट्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है. Your limit is changing from x is equal to 0 to x is equal to y. x is equal to 0 to x is equal to y. हर एक पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, राइट. एवरी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू y तक चेंज हो रहा है. और फाइनली आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कहाँ से कहाँ तक ऐड करनी है, वो यहाँ पे दिया हुआ है. You have to change this from y is equal to 0 to y is equal to 1. Now y is equal to 0 is the equation of x axis and y is equal to 1 is a line parallel to x axis at point. यहाँ पे कौन से पॉइंट से जा रहा है, वो 1 से जा रहा है. So y axis पे 1 जहाँ पे होगा y is equal to 1, उससे वो पैरेलल लाइन जा रहा है. y is equal to 0 ये वाला पॉइंट है, इस पे y is equal to 0 है, तो ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देगा. तो यहाँ पे आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो 0 से लेके 1 तक ऐड करना है. ओके, सो इसको चेंज करके क्या बनना है, चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेम इक्वेशन ड्रॉ करो. सिंस अभी अपने को क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स. और ये रीजन है मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 का लाइन है ये वाला. अभी मुझे क्या करना है, वर्टिकली ऐड करना है. वर्टिकली ऐड करना है तो मैं वर्टिकली ऐसे ऐड करते जाऊंगा, राइट. अभी ये जो वर्टिकली ऐड कर रहा हूं तो इक्वेशन कहां से चेंज हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टू y इज इक्वल टू 1 एंड आई हैव टू ऐड दिस लाइन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1. So this is how changing this horizontal order to vertical order. So let's see by the graph कि कैसे एक्चुअली में ये होता है. ये मैंने रफ में ड्रॉ करके बताया. तो जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y, हॉरिजॉन्टल लिमिट्स ऐसे आएंगे. लेट अस रिपीट, ये आपका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू y. सो हॉरिजॉन्टल लिमिट्स आर लाइक दिस एंड you have to add this horizontal line. horizontal line कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ये सब horizontal line जो है वो आपको y is equal to 0 से लेके y is equal to 1 तक आपको ऐड करते जाना है. So this is how the region of integration is given. So यही region यहाँ पे कॉपी कर दिया है, सेम region है, region का कोई चेंज नहीं हुआ है. Only changing is what we have to evaluate. Instead of drawing horizontally we have to draw the vertical lines. So vertical lines are change कहाँ से कहाँ तक हो रहा है. So यहाँ पे horizontal line था, यहाँ पे vertical lines x is equal to y का लाइन है, यहाँ पे क्या होगा, y is equal to x होगा. फिर x is equal to y means y is equal to x. यहाँ पे ऊपर का लाइन का इक्वेशन क्या है, y is equal to 1. So limits are changing from x is equal to y to y is equal to x to y is equal to 0 and then horizontally आपको vertical lines कहाँ, ये जो सब vertical lines है वो 0 से लेके 1 तक आपको ऐड करना है. So this order will change to this order. Limits from y is equal to x to y is equal to 1 and then x is equal to 0 to x is equal to 1. So this is how changing of the order take place. Okay, understood. ये हॉरिजॉन्टल लिमिट्स है और ये वर्टिकल लिमिट्स है. हॉरिजॉन्टल विल कन्वर्टेड इनटू वर्टिकल. सो लेट अस मूव डाउन. अभी आप एक करके स्टेप्स बोलो. पहला स्टेप क्या होगा इसका, हाउ टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 1 y इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पहले y को इनसाइड मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब हो जाएगा प्लस वाई
दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या है, y है, तो x का टर्म जो है कांस्टेंट होगा, सो एक्स स्क्वायर का टर्म इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में से सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा। वाई व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर y बाई टू स्क्वायर बाय 2, सो x स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2। अभी इंटीग्रेशन ऑफ प्लस y, वाई रेज टू 4 बाई y raised to 4 by 4. So every time that first formula जो x raised to n वाला जो फॉर्मूला है वो सब जगह बहुत जगह वो यूज होता है, तो वो यूज करना है आपको। सो y क्यूब का इंटीग्रेशन y raised to 4 by 4। ओके, सो ये मिल गया आपको। सो आपको ये इसका लिमिट्स देना है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 6 0 सॉरी टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या है, x to 1, और ये to लिमिट्स 1 किस में डालना है, y में डालना है। सो x to 1 इज लिमिट सब्सटीट्यूटेड इन y। अगर x में सब्सटीट्यूट किया तो आगे इंटीग्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, सब्सटीट्यूट लिमिट इन टर्म्स ऑफ y। सो y के जगह पे आप ये लिमिट्स डालो। सो लिमिट डालोगे तो क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर पहले बाहर 1 लेंगे तो पहले अपर लिमिट डालते हैं हमेशा। सो एक्स स्क्वायर वाई के जगह पे 1 डालो बाई 2 प्लस वाई के जगह पे 1 डालो तो क्या मिलेगा, 1 by 4। 1 सो बाई दिस 4 आई हैव सब्सटीट्यूटेड अपर लिमिट। अभी लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, y के जगह पे x डालेंगे तो क्या होगा, y के जगह पे x डालो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स रेज टू स्क्वायर 4 अपॉन प्लस 4 एक्स रेज एक्स रेज टू 4 बाई 4 4। ओके, सो ये मैं 2x 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकता हूँ आगे के स्टेप में। सो लेट अस वर्क फॉर द मूव डाउन, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने इन दोनों को ऐड किया, x4 इज द कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट टर्म में से 1/2, सेकेंड टर्म में से 1/4। कैलकुलेट दिस, 1 बाई क्रॉस 4 मल्टीप्लाई, प्लस 2 बाई 4 plus 2 by 8, 6 by 8, 6 by 8 is, 3 बाई 4 नहीं तो यहाँ पे 3/4 इज इन द मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम द सेकेंड टर्म, बाकी का एज इट इज रखा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1/2 आउटसाइड, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3। नेक्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन 1/4 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1, एक्स इट इज x by 4। और थर्ड टर्म क्या है, 3/4 आउटसाइड माइनस कांस्टेंट, 3 बाई आउटसाइड एक्स रेज टू 5 बाई 5 x raised to 5 by 5. So substitute this all these limits in the integration, you will get लिमिट्स so 1/2 मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, so ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 into this x cube by 3, so it is x cube by 6, then 1/4 into x, it is x by 4 and minus of, यहाँ पे x cube by 5 है, उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, so it is 3x raised to 5 upon 20. So every will we have to put the limits 1/1 and 0. Okay, so यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल है, इसलिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट किया ना तो भी यही आंसर आना चाहिए 4/15। सो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स सी 0 to 1 in the bracket 0 to y x square y plus y cube into dx into dy। ओके, सो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट कर रहा हूँ, ये अभी भूल जाओ, ये आपने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया।
ओके, सो अभी 0 to y है, तो क्या होगा, 0 to 1 इज आउटसाइड लिमिट. टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. y इज आउटसाइड, so integration is x square is x cube by 3. Since y is in the 3. multiplication, y we can write over here plus y cube. Since we are integrating with respect to x, it is y cube into x. These are limits from 0 to y. x के जगह पे 0 and y डालना है dy. So limits 0 to 1, y डालोगे तो x के जगह पे y डालोगे तो क्या हो जाएगा, y4 Y by raised to 4 by 4. 3. yes, and यहाँ पे y डालोगे तो Y raised to 4. y raised to 4, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो x के जगह पे तो 0 हो जाएगा सब पूरा टर्म्स, so -0 and integration in terms of dy. y4 by 3 है, so 1 by 3 into y4 का 5 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस y4 का क्या हो Y जाएगा raised to 5. Y अपॉन, raised to 5 by 5. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. मतलब सब्स्टिट्यूट द लिमिट, पहले वाले लिमिट लिए डालोगे तो 1 by 15 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा ये, सॉरी इरेज नहीं होता पूरा इरेज करें. Let me see once. Okay, my system got hang, I think. ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये इरेजर का यही इशू है. Let me just rearrange this. Just wait for 2 minutes. I will just close this application and open again. My system got hanged basically. अरे यार कुछ भी काम नहीं कर रहा है. Let us write again. हमारा लास्ट का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या था? We have come to this point 0 to 1, सॉरी हमने डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट किया था y5 अपॉन 15, छोड़ो भूल गए मैं क्या 1 by ठीक है. लेट अस रीराइट अगेन. 0 to 1 इंटीग्रेशन किया था हमने with respect to x, so yx cube upon 3 x square plus y cube, so y cube का क्या था, y4 upon 4. ये ऐसे ही होता है.
0 to 1 integration of this term y constant x cube by 3 plus y cube y cube का इंटीग्रेशन होगा y cube into x, limits from 0 to y dy. Then when we substituted limits, it is y4 by 3 plus y4. So I can write this as 4 by 3 into y4, because I can add 1 plus 1 by 3, we will get 4 by 3 y4 dy. So 4 by 3 outside, you will integrate this y raised to 4, you will get y5 upon 5, and limits are from 0 to 1. So what is, you will get 4 by 3 into 1 by 5, answer will coming out to be 4 by 15. So by this also you will get the same answer. So no matter which order your integration is performed, you will get the same answer. Therefore, sometimes it is easy to change the order of integration and evaluate. Sometimes the other way is easy. Given integration is easy to evaluate. Okay, but both will give you the same answer. That is the meaning over here. Consider this particular integration, you cannot evaluate without changing the order. This kind of integration you cannot evaluate because यहाँ पे पहले क्या है, dy से integrate करना है. So it is of the form, कैसा form है इसका? It is of the form u into v rule. अगर मैं सिर्फ यही integration evaluate करूंगा तो u into v rule I have 1 by y into this e raised to minus y. So इसको u लूंगा, इसको v लूंगा, फिर आप uv रूल अप्लाई करोगे और ये इंटीग्रेशन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि 1 by y का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 by y स्क्वायर. सो -1 by y स्क्वायर जब आप लोगे तो वो फिर से uv रूल के फॉर्म में आ जाएगा. सेकेंड इंटीग्रेशन जो है फिर से uv रूल के फॉर्म में आ जाएगा, फिर से आपको वही uv रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन जब होता है तो इसका चेंज ऑर्डर करके ही ओनली वे टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, ये इंटीग्रेशन कोई और तरह से सॉल्व नहीं होता है. अगर सॉल्व करने जाओगे ओरिजिनल ऑर्डर से तो बहुत मुश्किल होगा. यू हैव टू यूज द कॉम्प्लिकेटेड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, लाइक वी डिड फॉर साइन एंड कॉस एक्स. कहीं पे अगर वो फंक्शन आया तो हम लोग वो रिपीट कर देंगे. सो दिस इज बिकम सिंपल इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर मैंने इसको x के साथ पहले इवेल्युएट किया ना, पूरा फंक्शन कांस्टेंट होता है. ओके, सो पूरा फंक्शन आई कैन टेक आउटसाइड ऑफ दिस इंटीग्रेशन. अगर मेरा ये ऑर्डर चेंज होता, dx dy होता, सो ये पूरा y के टर्म में, तो x के साथ कुछ इसका संबंध ही नहीं है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं. इसीलिए इसको क्या है, वी हैव टू चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड सॉल्व. ओके, सो पहला वाला था दोनों तरह से सॉल्व होता था, ये वाला जो है एक ही तरह से सॉल्व होगा. ओके, so let us change the order of integration. What are the limits? Y is equal to x to y is equal to infinity and x is equal to 0 to x is equal to infinity. अभी मुझे बताओ ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? X axis, this is my y axis. What is equation of line y is equal to x? कैसे प्लॉट करोगे? 0 0 यहाँ पे 1 1 2 2. I have plotted the equation of this line y is equal to x. x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा. So this I can join by the straight line and I will write this point y is equal to x. y tends to infinity किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में. So limits are changing from y is equal to 0, y is equal to x to y is equal to infinity. So ऐसे horizontal strips बनेंगे, right? These are your vertical strips, y is equal to x to y is equal to infinity. और ये vertical strips आपको ऐड कहाँ से करना है? x is equal to 0 to x tends to infinity. X tends to infinity is this side. Okay, so this is how the region of integration is drawn. यहाँ पे ऊपर कोई लिमिट नहीं है. It is going to the infinity.
0 to infinity. ओके, देन अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो चेंज करते वक्त क्या करूंगा, यही वाला मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, यही वाला होगा, बट मुझे क्या करना है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाना है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल बनाया तो मेरा ये लिमिट क्या होगा, दिस इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू y. सो माई हॉरिजॉन्टल लिमिट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y, और मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट से लेके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y टेंड्स टू इंफिनिटी होगा. सो मेरा लिमिट्स क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 टू y टेंड्स टू इंफिनिटी. सो लेट अस इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन. इवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला था आपको, दिस आर द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ओरिजिनल गिवन दैट y इज इक्वल टू x, यहाँ से लेके y इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये वर्टिकल लाइंस पे आपका चेंज हो रहा है. और फिर ये जो वर्टिकल लाइंस है, ऑल द वर्टिकल लाइंस विल ऐड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x टेंड्स टू इंफिनिटी. सेम इफ आई डू हॉरिजॉन्टली, माय इंटीग्रेशन इज चेंजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कहाँ से कहाँ तक ऐड होंगे, y इज इक्वल टू 0 से लेके y टेंड्स टू इंफिनिटी तक. सो दिस आर द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. अभी अगर ऑर्डर चेंज किया तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो इजी बन जाएगा सॉल्व करने को. ओके, हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन देन, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व ही नहीं कर सकते, बट राइट हैंड साइड में ये क्या है, सिंस लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x, sorry, limits in terms of y, therefore integration will be terms of x. So integration in terms of x मतलब y के all the terms will be constant. So ये पूरा term जो है constant can be taken outside of the integration. You will get integration of 1 dx. What is integration of 1? X. Integration of 1 is x. Integration of 1 dx is equal to x. Integration of 1 dy will be equal to y. Okay. So understood the difference. यहाँ पे dx है इसलिए x आया, यहाँ पे dy है, y के टर्म में इंटीग्रेशन है तो y आएगा. So integration Yes. is x और लिमिट्स क्या है 0 to y. So पहले y सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस 0 मिल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अभी ये क्या होता है, ये y एंड y गेट कैंसल्ड, सो दैट ये जो है e रेस टू माइनस वाई, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, e रेस टू ए वाई. व्हाट इज द इंटीग्रेशन, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू एक्स. यहाँ पे अगर e रेस टू एक्स होता तो क्या होता है, e रेस टू एक्स अपॉन ए. सो x के जगह पे y है तो क्या आएगा, e रेस टू ए वाई अपॉन ए. सो a का वैल्यू क्या है, -1 है, इसीलिए आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, if I evaluate e raised to minus y अपॉन -1. अगर आपका कोई भी फंक्शन है, आपको sin x का डेरिवेटिव पता है, व्हाट इज डेरिवेटिव, सॉरी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x, Cos x. माइनस cos x, राइट. अगर यहाँ पे sin के साथ कोई टर्म है ax, तो आप क्या करोगे, cos ax अपॉन a. सिमिलरली अगर आपके पास अगर टर्म है e रेस टू एक्स, तो क्या करोगे, e रेस टू एक्स का आपको पता है e रेस टू एक्स होता है, सो e रेस टू एक्स अपॉन a. सो जो भी टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होता है वही टर्म को आपको डिवाइड करना है. और अगर आपका अगर टर्म है, यहाँ पे साइन का एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हैव साइन ax प्लस b, तो क्या करोगे, Minus cos. वही Minus लिखोगे, cos ax plus b upon ax plus b. अपॉन नहीं, A. अपॉन ए, ओनली ए. ओनली थिंग इज यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है. आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करते हो, cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएट आपको करना है, तो क्या करोगे, sin ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म.
डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म क्या होता है, ए से मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव, इसलिए इंटीग्रेशन करोगे तो ए से डिवाइड होगा, दैट इज द थिंग। ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन। अगर आपको उसका डेरिवेटिव नॉर्मल में पता है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो वो कांस्टेंट से इंटीग्रेशन के वक्त डिवाइड होता है, वो कांस्टेंट से डेरिवेटिव के वक्त मल्टीप्लाई होता है। सो डेरिवेटिव के वक्त जो भी मल्टीप्लाई होता है वो इंटीग्रेशन के वक्त क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। सो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, e रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या होगा, e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0 एंड e रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, बट 1 अपॉन -1 है, इसीलिए क्या होगा, -1 होगा। सो लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज ओनली सॉल्व्ड यूजिंग चेंज ऑफ द ऑर्डर। ये ओरिजिनली आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओरिजिनली अगर आप सॉल्व करने जाओगे ये इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन विल बी लाइक दिस, 0 टू इंफिनिटी। In the second integral you will have u into v, so 1 by y integration of e raised to minus y minus integration of this derivative 1 by y का derivative क्या होगा, y raised to -1 -1 y raised to -2, so it is 1 by y square minus of 1 by y square into integration of e raised to minus y dy, और ये पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, एंड ये पूरा ब्रैकेट का इंटीग्रेशन निकालने के बाद लिमिट्स आर फ्रॉम x टू इंफिनिटी एंड देन यू हैव टू राइट dx। ओके, सो ये इंटीग्रेशन अगेन जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ 1 by y स्क्वायर इंटू e रेज टू y। सो हर टाइम जब आप यूवी रूल अप्लाई करते जाओगे तो y का पावर बढ़ते ही जाएगा, y इज इन डिनोमिनेटर। सो मैंने इसको अगर रिवर्स में भी लिखा, तो e रेज टू माइनस वाई आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y क्या आएगा, log y आएगा। सो लेट अस सी हाउ टू राइट, u एंड v का इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले e रेज टू माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस e रेज टू माइनस वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y dy। सो ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बन जाता है अगर मैं ओरिजिनल ऑर्डर में इवेल्युएट कर रहा हूँ। सो ओरिजिनल ऑर्डर में इवेल्युएट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चेंजिंग द ऑर्डर विल बिकम द वैल्यू सिंपल। दैट इज माई पॉइंट ओवर हियर कि व्हेन you have this kind of integration you will have to work on it. So now there are 4 minutes left. This is your question for homework. Change the order of integration and evaluate 0 to 1 integration from root y to 1 e raised to y by x dx dy. Try drawing the sketch of this integration. इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? So जैसे आप ये होमवर्क कंप्लीट करोगे you have to put in the WhatsApp group or you can put in the channel if possible. You have the access to this particular channel. You have to go to the Teams. You have to go to the SYIT Teams Applied Mathematics, और यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो आपका कोई भी चीज़। सो यहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हो आपका असाइनमेंट। सो ट्राई दिस ड्राइंग दिस sketch and upload in the assignment box, upload in the channel. Copy down this, change the order of integration and evaluate 0 to 1 integration from 1 to root y e raised to y by x dx dy. ठीक है, so this is your question. Try to upload the solution by evening. In the next lecture I will show you if you don't find the answer e raised to y by x. Basically it is x is equal to root y to x is equal to 1. So x is equal to root y is a parabola, like we have done this
इन द फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ का पैराबोला होगा. ओके, so let's stop over here. Have you copied down this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me download the attendance and stop the lecture. ठीक है. Bye, sir. Thank you.